صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اہم قانون سازی کے علاوہ ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ 2014 میں بھی یہ ڈرامہ ہوا تھا، میرے ساتھ ہوا تھا، میں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو کہتے تھے جعلی پارلیمنٹ ہے۔ جب 2018 کی پارلیمنٹ آئی تو جعلی نہیں تھی، 2013 کی بھی جعلی تھی اور 2024 کی بھی جعلی ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلتا سسٹم، تو اس لیے I will not take that at all. Please, this is an attack on this parliament جس میں آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، so this is not acceptable. پارلیمنٹ کے خلاف شرپسند عناصر ایک بار پھر متحرک ہے۔ پارلیمنٹ آئین، قانون اور امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کے خلاف سازش کرنے والے نام نہاد لیڈر اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا پارلیمنٹ کے تحفظ اور بالادستی کا دو ٹوک اعلان۔ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ جیل کی ملاقات کا ایک جیل مینول موجود ہے، there is no other way۔ آپ غیر قانونی ڈیمانڈ کریں گے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی روایت کس نے ڈالی؟ ہم نے پی ٹی آئی دور کی تلخیاں برداشت کی۔ محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید نے ملک کے لیے میثاق جمہوریت کیا، جس سے سیاسی عمل بحال ہوا۔ قیدیوں سے ملاقات سے متعلق جیل مینول موجود ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے سر ہمیں یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہم سب پہ فرض ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے جو نبھانے کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ سر یہ کوئی حسن اتفاق یا مذاق نہیں ہے۔ صوبائی مشینری کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ غیر آئینی ہوگا۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے۔ سیاست کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ہمیشہ ملکی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سرکاری وسائل کا غیر قانونی استعمال بدعنوانی اور اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہوگا۔ کوئی سرکاری گاڑی، مشینری یا عملہ احتجاج، مارچ یا سیاسی ریلی میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری وسائل کا غلط استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری مشینری کے ناجائز استعمال کے خلاف فیصلہ۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ، کسی بھی قسم کے احتجاج یا جلسے جلوس کی ہرگز اجازت نہیں۔ ضلع انتظامیہ۔ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں۔ کسی کی تصویر لگائیں گے، جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے۔ یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح فیک نیوز کو سپریڈ کریں، پورے ملک میں ایک پینک پھیلائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ۔ بیرون ملک بیٹھ کر اداروں کے خلاف زہر اگلنے والوں کو جلد واپس لا رہے ہیں۔ ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 90% فیک نیوز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پر جو چاہیں خبر لگا دیں۔ سوشل میڈیا پر غلط خبر دینے پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ جھوٹی خبر پھیلانے والے صحافی نہیں، کسی کو فیک نیوز پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا۔ جو اللیگل اغوانز یہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ خود چلے جائیں عزت کے ساتھ، آپ ہمارے مہمان تھے، اب ہم اس کے بعد خالی بھیجیں گے نہیں، اور جو واپس دوبارہ پکڑا گیا کہ وہ اب اریسٹ ہوگا۔ افغان ہمارے مہمان نہیں، باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ انخلا پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ افغان باشندوں کو ہر صورت واپس آنا ہوگا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور پر حملہ کرنے والے تینوں افغانی تھے۔
اسلام آباد کچہری پر حملہ کرنے والا بھی افغان شہری نکلا. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے، مزید دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے افغان باشندوں کا انخلا جاری. خیبر پختونخوا میں افغان شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی. پاکستان میں افغان شہریوں کا منظم دہشت گرد نیٹ ورک گروپ بے نقاب. تالا گنگ سے دہشت گرد افغان شہری قاسم عرف حسن گرفتار. پاکستان میں تقریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف. 10 سال پہلے افغانستان سے لکی مروت آیا. سرا درگاہ میں طالبان کمانڈر ارمانی سے ملا، جس نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا. فوجی کلا پر خودکش حملہ کرنے کا حکم ملا، موقع نہ ملنے پر ناکام ہو گئے. ستمبر میں کمانڈر ارمانی کی ہدایت پر پنجاب گیا، جہاں گرفتار ہو گیا. لکی مروت میں پولیس موبائل کے قریب دہشت گرد حملہ، 1 اہلکار شہید، 5 زخمی. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی مذمت، شہید اہلکار کے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا. دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائیں گے. شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور ملک دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں وزیر اعظم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی ملاقات. دفاع، سیکیورٹی تعاون، عسکری روابط، تربیت اشتراک اور علاقائی امن و استحکام کا جائزہ. 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. مصر کے وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کرغزستان کے صدر کے دورہ پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس. کرغز صدر کے دورے کے دوران تمام ایجنڈا آئٹمز اور ملاقاتوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے متوقع مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترک اسمبلی کی یورپی یونین ہم آہنگی کمیٹی کے صدر برہان کایا ترک کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، معاشی، ماحولیاتی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترکی کے ساتھ فلڈ مینجمنٹ، کلین ٹرانسپورٹ، جنگلات اور آبی وسائل کے تحفظ سمیت کلائمیٹ سمارٹ انفراسٹرکچر میں مشترکہ تعاون کی ضرورت پر زور. IMF رپورٹ تکنیکی ہے جس میں 15 اہم سفارشات کی گئی ہیں. رپورٹ میں پروکیورمنٹ سسٹم کی تعریف کی گئی ہے. سٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات بھی کر رہے ہیں. وفاق اور 3 صوبوں میں ای پیڈ سسٹم فعال ہے. نظام کا مقصد کرپشن ختم کرنا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF رپورٹ سے متعلق سینٹ میں اظہار خیال. حکومت کی اقتصادی پالیسیز کے ثمرات. ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر. مالی سال 2025-26 کے پہلے 4 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات $6.4 ارب ریکارڈ. ویلیو ایڈڈ شعبوں نے کارکردگی میں نمایاں حصہ ڈالا. ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ، عالمی مانگ میں بہتری، ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی مضبوط کارکردگی اور روپے کی قدر میں استحکام کا نتیجہ. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 1400 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 1,68,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گئی. دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1,384 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. مارکیٹ 1,68,062 پوائنٹس پر بند. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات. صوبے کے سیاسی اور انتظامی مسائل پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو زرداری سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی بھی ملاقات. بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. نومبر میں ایک خاتون سمیت 4 بے گناہ کشمیری شہید. محاصرے اور تلاشی کی 471 کارروائیوں کے دوران 2,819 افراد گرفتار. کالے قوانین کے تحت مقدمات درج. گرفتار افراد میں سیاسی کارکن، ڈاکٹرز اور خواتین شامل. 18 بے گناہ کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط. سری لنکا میں بدترین سمندری طوفان. پاکستان کے ریلیف آپریشن کی راہ میں بھارتی حکومت کی پاکستان دشمنی حائل.
फैशिस्ट मोदी अना की तस्कीन के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा। पाक फौज की 45 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम एनडीएमए और पाक फजाइया की मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया। एनडीएमए ने तिजारती कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाने की भी कोशिश की। भारतीय फजाई हदूद की बंदिश के बायस 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 दिन में श्रीलंका पहुंचेगा। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज भी जारी। पाक बहरिया के जहाज PNSF ने श्रीलंका में 5 दिन से बसे खानदान को बचा लिया, 7 माह का बच्चा भी शामिल। पाक बहरिया ने सैलाबी पानी में घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां श्रीलंका के साथ गहरी दोस्ती और इलाकाई यकजहती के अज़्म का मजहर हैं। गाजा में इस्राएली फोर्सेस की बर्बरियत जारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। आज़ाद फलस्तीनी रियासत इसराइल फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। पोपलियो इसराइल गाजा में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक 2 रियासती हल का दिफा जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। रूस यूक्रेन अमन वाहिदे पर यूक्रेनी वफ्द से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। जंग बंदी के मामले पर मजीद बातचीत जरूरी है। अमन मंसूबे में यूक्रेन की तवील मुद्दती खुशहाली की शराइत भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्लोरिडा में यूक्रेनी वफ्द से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुज़ाकरात के लिए आज मॉस्को रवाना होंगे। अफगानिस्तान शदीद तालीमी और फिक्री दबाव की जद में। दहशतगर्दी के फरोग के लिए अफगान तालिबान की जाबिराना पाबंदियां। जालिम तालिबान रजीम अफगानिस्तान में खामोश, महरूम और तासुब ज़दा मुआशरा कायम करने की कोशिशों में मसरूफ। ख़वातीन की तालीम पर कदगन का मकसद दहशतगर्दाना सोच की हामिल नस्ल को परवान चढ़ाना है। ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद बेरोजगार हो चुकी। इल्मी शोबों में तबाही ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को तारीकी में धकेल दिया। यूनेस्को और यूनिसेफ की रिपोर्ट्स। IPL की एक और विकेट गिर गई। जनूबी अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी के बाद इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली का भी IPL छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का फैसला। पाकिस्तान में खेलना हमेशा अच्छा रहा है। PSL के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूं। मोइन अली का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन का खेल मुकम्मल। कराची ब्लूज की पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 285 रन, अब्दुल्ला फजल के 88 रन, उस्मान खान 80 रन पर नॉट आउट। सियालकोट रीजन के हसन अली और मोहम्मद हसनैन की 2-2 विकेटें। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Very close. Yes, the finger is raised. और सऊदी अरब में वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। कांसी के 3 तमगे जीत लिए। सदफ सदीकी ने वेमेंस मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स कैटेगरी और इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में कांसी के तमगे अपने नाम किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त,
बर वक्त। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। इजलास में अहम कानून साजी के अलावा मुल्क में अमन व अमान और सलामती के हवाले से मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानियों के इनखला के मामले पर वफाक की पॉलिसी पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नहीं कर रही। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू की तफसील शेयर कर रहे हैं आसिम नज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अप्रैल 2025 तक 11 लाख अफगानियों को अफगानिस्तान वापस भिजवा चुके हैं। 3 सूबों में अफगानियों के इनखला के हवाले से कार्रवाई कामयाबी से जारी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डी नोटिफाई किए जाने के बावजूद अफगान महाजर कैंपों को बंद नहीं कर रही। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकश हमलावर जो था वो अफगान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। हम KP के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा। जो इलीगल अफगान यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग ख़ुद चले जाएँ इज़्ज़त के साथ। आप हमारे मेहमान थे, आप इज़्ज़त के साथ चले जाएंगे ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ अब हम उसके बाद खाली भेजेंगे नहीं। और जो वापस दोबारा पकड़ा गया कि अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैसे लेकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंटों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज के तदारुक के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। 50 से 60-70 लोग ऑफलोड दिन में हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेक श्योर करें कि जो लोग जा रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, वैलिड वीज़े पे जा रहे हैं और सही नौकरी पे जा रहे हैं। इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाहर के मुल्कों में नौकरियां बढ़े, ना कि लोग कहें कि जी अपने लोगों को वापस लेके जाएं। उसके लिए ये स्टेप्स करने ज़रूरी हैं। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो खबर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं और उसके बाद आपको कोई कुछ कहे भी ना। उन्होंने कहा कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि रियासत मुखालिफ किसी आदमी को ख्वाह वो मुल्क से बाहर ही क्यों ना हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब हो गया है। तलागंग से अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन ने गिरफ्तारी के बाद अपने एतराफ़ी वीडियो बयान में पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है। दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन ने बताया कि 10 साल कबल अफगानिस्तान से लकी मरवत आया। सरा दरगाह में तालिबान कमांडर अरमानी से मिला, जिसने मुझे दहशतगर्दी की तरबियत दी। نام د قاسم پاسن باندې مشهور یم، هغه پلار نام ملال خان ده، په کام باندې د لوزي یا افغانیان هغه یم یا ګردیز د ولایت یم. 10 کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو. پاکستان کې لکه مروت ګنډیچاو کې اوسېدلو. ګنډیچاو کې ډېر ښه خلک او ډېر ښه عوام ماشاءالله موږ سره ډېر ښې ښېګړې وکړلې. موږ دلته په لکه وړکي راغټ سو پاکستان خلکو نه موږ ډېر غټه غټه مننه غواړو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره ملکات مې وسو سره سره درګه کې ارمانی کمانډر سره ما ورته بس هدي بیا سو راځي وتلی بیا تزر سلانه یار کې مشل راځي سره تیر کې بیا 15 سورج سره تیر کړل. هغه نه بعد بیا لاړ یو ته جوړ کې وکیلا ویل دغه باندې با پیدای ک یو زوم یو بل کس کا فاروق بیا ورسې په دغه کلا باندې راو ګرځول راځي
بیا ته پیدایي شیخه ناست موقع شیخه ناست بیا بیرته راغللو د بیا 15 نفره مې ورته راوستل ده بیا ما ته په نفر په سر باندې 1000 روپۍ راکړل بیا له هغې نه بعد بیا ما ورته زه ځم کته پنجاب ته بیا زه پنجاب ته تللم بیا د ما سره مشوره وکړه که ور وخت کسان دې پیدا کړل پنجاب بیا هغه کسان راوله بیا ما ته بیا ما ورته بس دی هغې له منځ کې ذاتي بیا هغه ونیولم پولیس ونیولم پاکستان اور مصر نے دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ اتفاق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کے درمیان GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی تعاون، عسکری روابط، تربیت اشتراک اور علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دفاع اور وسیع تر اسٹریٹجک شعبوں میں ہم آہنگی کو مضبوط اور دیرینہ تعلقات مزید مستحکم کیے جائیں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مصر کی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات بھی پہنچائیں اور کہا کہ مصر پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ قیدیوں سے متعلق ملاقات کے حوالے سے جیل مینول موجود ہے، PTI کا کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انصاف والوں کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت کے تحت سیاست میں شائستگی کو پروان چڑھایا۔ PTI دور میں مخالفین کو ذاتی انا کی تسکین کے لیے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یا جیل کی بات کی، ملاقات کی بات کی، ان کے لیڈر امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا AC اتار دوں گا، ان کے لیڈر وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں نے شاہد عباسی کو جیل میں ڈال دیا۔ کس نے کہا کہ اس کی بہن بیٹی کو پکڑ کے گرفتار کرو اور جیلوں کے اندر ڈال دو؟ کس نے کہا کہ صبح شام مجھے گرفتاریوں کی لسٹ چاہیے؟ یہ لوگ صبح شام پتہ کراتے تھے کہ جیل کے اندر کھانا تو نہیں مل گیا، جیل کے اندر دوائی تو نہیں چلی گئی۔ جو جیل کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ قانونی مشاورت کریں۔ جیل کی ملاقات ہوتی ہے کہ جو صوبہ آپ کے زیر انتظام ہیں ادھر لا اینڈ آرڈر کے انتظامات کریں۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کو بڑی گالی کون دے گا اس کو میں تھپکی دوں گا۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ فوج کے ادارے کو بدنام کرو، انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ملک کو بدنام کیا جائے۔ جیل کی ملاقات اس لیے نہیں ہوتی کہ شہداء کی تصحیح کی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف شرپسند ایک بار پھر متحرک ہیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی اور تحفظ کا دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین، قانون، امن و امان اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں فہد جاوید۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکنے کی سازش 2014 میں ناکام کی گئی، اب پارلیمنٹ پر دوبارہ حملے کی سازش قبول نہیں ہے۔ یہ 2014 سے بھی ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں، تب بھی مقابلہ کیا تھا اور اب بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پروٹیکٹ کروں پارلیمنٹ کو۔ یہ اگینسٹ دا اسٹیٹ باتیں، اگینسٹ دا پارلیمنٹ باتیں اور اسٹیٹ کے خلاف یہ باتیں کرنا غیر مناسب ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم روکیں گے، ہم سب مل کے روکیں گے اور یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی ایسی بات کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور جمہوریت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیاست اور فسطائیت میں فرق ہوتا ہے، سیاست کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اوتھ بھی اسی بات کا ہمیں پابند بناتا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے اور بطور رکن اسمبلی کے ہم نے جو رولز آف پروسیجر اور جو ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا وہ ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ تو سر کسی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے سر ہمیں یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہم سب پہ فرض ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے جو نبھانے کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ سر یہ کوئی حسن اتفاق یا مذاق نہیں ہے۔ لوگ آپ کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں اور قانون اور ضابطے کی بات کریں اور ان کے مسائل کی بات کریں، نہ کہ آپ کسی ایک شخص کے پیچھے چل کے
पूरे निज़ाम को हाईजैक करने की बात करें। कौमी असम्बली ने फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। दोनों बिल एवाम ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बैरिस्टर अकील ने बताया कि विफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के रेगुलर बेंच के लिए 6 मेंबरान की तकरूरी कर ली गई है। बाकी मानदा मेंबरान की तकरूरी जल्द मुकम्मल करके FST के बेंच को फाल बना दिया जाएगा। वक्फे सवालात में पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ेब जाफर ने बताया कि PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इसमें इस्लाहात की गई हैं। PIA में एविएशन के असूलों के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हो गई। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट का इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। IMF की रिपोर्ट से मुतालिक तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट में प्रोक्योरमेंट सिस्टम की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि IMF की रिपोर्ट तकनीकी है जिसमें 15 अहम सिफारिशात पेश की गई हैं जो इदारा जाती इस्लाहात आगे बढ़ाने से मुतल्लिक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने चित्राल के लिए PIA की परवाज़ों से मुतल्लिक तहरीक पर जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम कर रही है। सेनेट ने मुल्क में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज की करारदाद भी मंजूर कर ली। ईवान ने गिरफ्तार या तहवील में ज़ेर तफ्तीश अफराद के हुकूक का बिल 2020, महदूद शराकतदारी तरमीमी बिल 2023 और मुहलक हादसात तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दी। इजलास में मुतादिद बिल्स भी पेश किए गए जिन्हें मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिया गया। सेनेट इजलास जुमेरात दोपहर 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से मामले पे जो मसला बन गया है उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। वाले मामले पे जो मसला बन गया है उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार और आला सतह रवाबित को सराहते हुए तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। कनाडा के हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में कैनेडियन कनोला की दरामद में सहूलत फराहम करने में नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तारिक अली खान ने रेकोडिक प्रोजेक्ट में बैरिक गोल्ड कंपनी और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दूसरी कैनेडियन कंपनीज की दिलचस्पी का जिक्र किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में किर्गिज़ सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान तमाम एजेंडा आइटम्स और आला सतह मुलाकातों की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे के दौरान होने वाली मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के बारे में तफसीली बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इस हवाले से हमने आपको आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कराची बंदरगाहों पर कार्गो क्लियरेंस की रफ्तार बढ़ाने के हवाले से कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में पोर्ट ऑपरेशंस को जदीद और क्लियरेंस का अमल हमवार बनाने के लिए जारी और आइंदा मनसूबों के बारे में ब्रीफ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन हम आहंगी कमेटी के सदर बुरहान काया तुर्क ने वफ़द के हमरा लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हालिया सैलाब के दौरान बर वक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में पाक तुर्की रवाबित अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के इज्तिमाई अज़्म को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुर्की के साथ फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वफ़द को बताया कि पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा इकनॉमिक जोन का नाम सदर रजब तैयब एर्दोगान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रखने की तजवीज़ दी है।
वफ्द के सरबराह बुरहान काया तुर्क ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के काम करने की रफ्तार तुर्की से भी तेज़ है। उन्होंने कहा कि तुर्की के अवाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद नवाज शरीफ के मद्दाह हैं। तिजारती ताउन हो या दिफा, सकाफत हो या अवामी सतह की दोस्ती, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। तफसील मोहम्मद शाहिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, तामीरात और ज़राअत समेत दूसरी मसनूआत का दो तरफा तिजारत $2.5 अरब से तजावज़ कर गया है, जिसे आने वाले बरसों में $5 अरब तक बढ़ाने का मुश्तरका हदफ है। तुर्क कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी मुसलसल बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और शहरी तरक्की की कई बड़ी मनसूबे में तुर्की सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मजीद मजबूत होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से तुर्किया की सफीर अरफान नजीर ओगलो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में तुर्क वजीर तवानाई की आमद की तैयारियों का जायजा लिया गया। तुर्क वजीर तवानाई अपने वफ्द के हमरा कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क मिनरल सेक्टर की बड़ी कंपनी भी वफ्द का हिस्सा होगी। ये दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और तुर्की के माशी ताल्लुकात तेजी से वसी हो रहे हैं। मुश्तरका सरमायाकारी, सनती ताउन और तिजारती सरगर्मियों का बढ़ता हुआ हुजम दोनों ममालिक को खित्ते में मजबूत इक़्तिसादी पार्टनर के तौर पर नुमाया कर रहा है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का आगाज हो गया है। अहवाल बताएंगे नवाब अली शाह। पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में हुकूमत और सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया है कि अगर बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। समिट से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी पर कंट्रोल ना होने की वजह से मसाइल में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। 40% of Pakistani children under the age of 5 stunted. Now, this is intellectual poverty. This is our future workforce. This is the future leadership of Pakistan, which, as they enter with a handicap which we can ill afford. The second one is learning poverty. पॉपुलेशन समिट में वीडियो पैगाम पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी की वजह से मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर साफ पानी की फराहमी, खुराक की कमी और बेरोजगारी की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। It is a national productivity crisis, a human development emergency, and a direct threat to Pakistan's long-term economic strength and sustainability. पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, सेनेटर शीर रहमान, मुशाहिद हुसैन, फारूक सत्तार और दीगर अहम शख्सियात ने खिताब किया और डेटा के जरिए साबित किया मुल्क में तालीम, सेहत, खुराक और दीगर वसाइल आबादी के मुकाबले में ज़रूरत से कम हैं, मगर बांग्लादेश और ईरान समेत दीगर मुल्कों ने बेहतर हिकमत अमली से आबादी पर कंट्रोल करके मसाइल को बड़े पैमाने पर कम कर दिया है। PTV न्यूज़ के लिए नवाब अली शाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मुलाकात की और सूबे की सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान की वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने भी बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल असासों और नई टेक्नोलॉजी से मुतालिक ज़ाब्ते बना रहा है ताकि मईशत में जिद्दत और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदर जेन बोको की सरबराही में मिलने वाले वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। हालिया सैलाब से माशी शरह नमू को शदीद धचका लगा है, जिसके पेश नज़र ग्रीन फाइनेंस के तहत पाकिस्तानी मईशत को पायदार खतूत पर उस्तवार करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान का पायदार तरक्की का एजेंडा IMF AC के अहम निकात से हम आहंग है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। 100 इंडेक्स 1384 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,68,062 की सतह पर बंद हुआ। तफसील सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में।
कारोबारी दिन के आगाज से स्टॉक मार्केट में सुबह से ही तेजी का रुझान रहा। ट्रेडिंग के दौरान 1569 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। आईएमएफ के साथ मुआहदे में पेशरफ, सर्कुलर डेट में कमी की खबरों और बरामदात में इजाफे से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक मुल्की मईशत की सूरत हाल मजमूई तौर पर उम्मीद अफजा है। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात, आलमी इदारों का बढ़ता हुआ एतमाद, सियासी इस्तेहकाम और मालियाती नज़्मो ज़ब्त के बाइस स्टॉक मार्केट तरक्की की जानिब गामजन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो स्टेप्स लिए हैं इस टाइम मार्केट को बूस्ट अप करने के लिए, और जिस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और जिस तरह से उन्होंने मैक्रोस के ऊपर काम किया, तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो हमें यहाँ से रेट्स भी स्टेबलाइज नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में आज 73 करोड़ 55 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 46 अरब रुपए से जायद थी। आज 560 कंपनियों के कारोबार में 278 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 162 में कमी और 120 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मार्केट में कमर्शियल बैंकों, खाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, बरकी मसनूआत और इंजीनियरिंग के सौदों में तेजी देखी गई। तज्जियाकारों का कहना है कि मुल्क में सरमाए की गर्दिश से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, जिसके मुस्बत असरात स्टॉक मार्केट पर भी मुरतब हो रहे हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन इक्तिसादी पॉलिसीज़ के समरात रवा माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। तफसील जानिए कराची से ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल बरामदात 6.4 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड की गई, जो कि मज़कूरा मुद्दत में सबसे बड़ा तिजारती हजम है। इस कामयाबी में वैल्यू एडेड शोबे ने नुमाया किरदार अदा किया। नेटवेयर की बरामदात 1.9 अरब डॉलर्स, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स 1.4 अरब डॉलर तक पहुंच गईं, जो दोनों शोबों के लिए भी पहले 4 माह की रिकॉर्ड सतह है। ये जो 4 मंथ का डेटा है वो काफ़ी मुस्बत देखा गया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स भी तकवात हैं कि वो 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होंगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो स्पेशली एक्सपेक्ट करें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे। स्पेशली जो है हम देखें रेमिटेंस भी इंप्रूव हो रही है, इन्फ्लेशन जो है सबडूड रहेगी 6% तक। ओवरऑल पर्सपेक्टिव यही है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो नज़र आएगी मुल्क के अंदर। दूसरा जो है हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और यूएस जो ताल्लुकात हैं, जिसके अंदर टैरिफ जो है उसकी फैसिलिटेशन भी है पाकिस्तान को कंपैरेटिवली इंडिया के हिसाब से, तो उसका भी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान की तरफ जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो पाकिस्तान के बड़े हैं। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा, आलमी मांग में बेहतरी, वैल्यू एडेड मसनूआत की मजबूत कारकर्दगी और रुपए की कदर में इस्तेकाम का नतीजा है। ये कारकर्दगी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारोबार दोस्त पॉलिसियों, बरामदात के फरोग के लिए हुकूमती तरजीहात और मुआशी नज़्म ज़ब्त पर मबनी हिकमत अमली का समर है। हुकूमत ने पॉलिसी तसलसल, सनती सहूलतकारी और बरामदी शोबों के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मसाबकती हैसियत को बेहतर बनाया है। कारोबारी एतमाद की बहाली, तवानाई लागत में बतदरीज इस्तेकाम और बरामदी सेक्टर के लिए सहूलती इक़दामात ने मजमूई तजारती माहौल को मजीद मजबूत बनाया है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाजरीन, गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती और ज़ाती हिफाजत से जुड़ा बड़ा मसला है। गैर रजिस्टर्ड VPN को दहशतगर्द, बैरूनी एजेंट और जराइम पेशा ग्रुप पसे पर्दा रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये अनासर गैर रजिस्टर्ड VPNs के जरिए दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, मुल्क में नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा और झूठी अफवाहें फैलाते और गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग देते हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरात पैदा करती है, जिसके नतीजे में हर पाकिस्तान शहरी गैर महफूज हो जाता है। अपने मुल्क और अपने आप को महफूज रखने के लिए सिर्फ PTA से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड VPN सर्विसेज इस्तेमाल की जानी चाहिए। गैर रजिस्टर्ड VPN से इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का जाती डाटा चोरी हो सकता है। बहुत से गैर रजिस्टर्ड VPNs खुफिया तौर पर हैकर्स, गैर मुल्की इदारों और मुजरिमों के कंट्रोल में हैं। महफूज और कानूनी इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए हमेशा मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता VPN इस्तेमाल किए जाएं। कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की, जहां गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह नवंबर में एक खातून समेत 4 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक भारतीय एहलकारों ने उनमें से 2 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। इस अरसे के दौरान भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस, SIA और NIA के एहलकारों ने मुहासिरे और तलाशी की 471 कार्रवाइयों के दौरान 2819 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें सियासी कारकुन, डॉक्टर्स, खवातीन शामिल हैं। बेशतर लोगों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस मुद्दत के दौरान BGP इंतजामिया ने 18 कश्मीरियों की जायदादें जब्त की। भारत के वतनामे ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने पुलवामा, शुपियाँ, कुलगाम और दीगर अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और आमिर रशीद समेत कई लोगों के घरों पर छापे मारे गए और तलाशियाँ ली गईं।
छापों और मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का जवाब पेश करने के लिए इन कार्रवाइयों को दिल्ली धमाका केस से जोड़ा जा रहा है। इस केस में कई डॉक्टर्स और एक इमाम मस्जिद समेत 6 शहरी तफ्तीशी मराकज़ में नजरबंद हैं। TRT वर्ल्ड में शाया होने वाले एक मजमून में अफसोस का इजहार किया गया कि बम धमाका नई दिल्ली में हुआ और मकानात मकबूजा जम्मू कश्मीर में मिसमार किया गया, जिससे जाहिर होता है कि भारत में जंगी जराइम का इर्तिकाब अब एक मामूल बन चुका है। मजमून में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भी एक तवील अरसे से गैर कानूनी फौजी कब्जे में है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मौजूद और सलामती कौंसिल के मुताबिक करारदादों में तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत से लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से महरूम रखा गया है। इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में समुद्री तूफान, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई है और सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं। अब तक इंडोनेशिया में 442, श्रीलंका में 334 और थाईलैंड में 162 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमतों ने एमरजेंसी नाफिज करके फौज, रेस्क्यू इदारों और तिब्बी टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी मुतासरा ममालिक के लिए हंगामी इमदाद की अपील की है। नाज़रीन, श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान के बाद पाकिस्तान के इमदादी ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी और पाकिस्तान दुश्मनी हायल हो गई। मोदी सरकार अपनी हिंदुत्व की फैशिस्ट अना की तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बाइस सैकड़ों अफराद हलाक, जबकि लाखों शहरी बेघर हो गए। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस मुश्किल की घड़ी में अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ताहम भारतीय हुकूमत ने फजाई हदूद बंद करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें डाल दी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने समुद्री तूफान के बाद श्रीलंकन हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की खुसूसी पेशकश की। पाक फौज की 45 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार है। ताहम भारत ने इस इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। श्रीलंका भेजी जाने वाली रेस्क्यू टीम तुर्की में भी नागहानी आफत के दौरान अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे चुकी है। NDMA ने 100 टन सलाहियत के हामिल तजारती कार्गो तैयारों के जरिए श्रीलंका इमदाद भिजवाने की भी कोशिश की। इन तैयारों की रवानगी भी भारतीय फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस सुस्त रवि का शिकार है। भारतीय फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 रोज़ के बाद श्रीलंका पहुंचेगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू कश्तियाँ, वाटर पम्प्स, लाइफ जैकेट्स, खैमे, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल हैं। पाक बहरिया का बहरी जहाज PNSF पहले ही श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत का इस नागहानी सूरत हाल में इमदादी सामान के लिए भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करना इंसानियत दुश्मनी की बड़ी मिसाल है। पाक बहरिया की श्रीलंका में समुद्री तूफान से मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज भी जारी हैं। पाक बहरिया के जहाज PNSF ने हेलीकॉप्टर की मदद से सैलाबी पानी में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मुतासरा खानदान में 7 माह का नौमौलूद बच्चा भी शामिल था। पाक बहरिया ने मुकामी इंतजामिया की मदद से सैलाबी पानी में घिरे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां श्रीलंका के साथ गहरी दोस्ती और इलाकाई यकजहती के अज़्म की मज़हर हैं। यूक्रेन के वफ़द ने रूस से जारी 4 साला जंग के खात्मे के हवाले से अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकात की। फ्लोरिडा में होने वाली मुलाकात में यूक्रेनी वफ़द की नुमाइंदगी कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सरबराह रुस्तम अमीरोव ने की, जबकि अमरीका की जानिब से मुज़ाकराती अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ ने शिरकत की। मुलाकात में जंग खत्म करने से मुतालिक अमरीका की तजवीज़ करदा तरमीम अमन मनसूबे के मुख्तलिफ निकात पर बातचीत की गई। डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर इनके मुशीर स्टीव विटकोफ मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। गाजा में इजरायली फौज ने रफा के इलाके में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के बाद से इजरायली फौज अब तक 356 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है, जबकि मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयों के दौरान फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। हमास ने कहा है कि इसराइल गजा जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास ने मुआहदे के पहले मरहले की तमाम शराइत पूरी कर दी है, लेकिन इसराइल दानिस्ता तौर पर दूसरे मरहले में दाखिल होने से गुरेज कर रहा है। गाजा के कई अस्पताल या तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं या शदीद दबाव में काम कर रहे हैं, जहां मरीजों के लिए बिस्तर और आलात दस्तयाब नहीं हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इमदादी टीमें मुसलसल रुकावटों का सामना कर रही हैं, जबकि बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनी ख़ैमा बस्तियों में इंतहाई ख़राब हालात में रहने पर मजबूर हैं। आलमी इदारों ने एक बार फिर फौरी जंगबंदी, इमदादी राहदारियों की बहाली और शहरियों की हिफाजत के लिए ठोस इकदामात का मुतालबा किया है।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि इसराइल बहाने बनाकर गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इस्तांबुल में तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हमास जंगबंदी बरकरार रखे हुए है। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम तक 2 रियासती हल का दिफा जारी रखेंगे। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक मरतबा फिर अपना अज़म दोहराया है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में ही मुज़मिर है। उधर हजारों निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने खिलाफ तवील अरसे से ज़ेर समात बदउनवानी के मुकदमात में बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी की दरख्वास्त की है। रुख करेंगे कौमी खबरों का। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि काम की जगह पर हरासानी के मसले से निपटने के लिए आवाज़ बुलंद करना लाजिम है। वो PNCA में काम की जगह पर हरासानी के खिलाफ शऊर उजागर करने के हवाले से नुमाइश में खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगे सईद वज़ीर। इस्लामाबाद में काम की जगह पर हरासानी, खामोशी को तोड़ना के इनवान से नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसका मकसद हर फर्द के हक के इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करना था। वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत इंसदाद हरासियत के हवाले से संजीदा है। कोई कौम भी आधी आबादी को घरों में बिठा के तरक्की नहीं कर सकती। जो उलमा का तबका है उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इस शऊर को उजागर करें। आपकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब मुआशी दौड़ में आपके साथ शामिल होगा तो आपकी जो मुल्की तरक्की है वो दुगनी होगी। नुमाइश में मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन के जरिए हरासानी के खिलाफ ताकतवर पैगाम दिए। नुमाइश में पेश किए गए फन पारे वाज़ेह पैगाम दे रहे थे कि खामोशी जुल्म को परवान चढ़ाती है और हर आवाज अहमियत रखती है। ब्रेक फ्री खुद ही करना पड़ेगा कि अगर आप नहीं करते हो वो कंटिन्यूस रहेगा, वो नहीं रुकेगा। मैंने पेंटिंग इसी बारे में बनाई है कि एक लड़की है, जब माशरे के सब लोग उसका साथ देते हैं, जैसे जैसे वो उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं, वो जो लड़की की जो ट्रॉमा है हरासमेंट की वजह से वो हील होता जा रहा है। नुमाइश देखने वाले हर अफराद का कहना था कि ये नुमाइश इन्हें काम की जगह पर एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए सोचने और कदम उठाने पर मजबूर करेगी। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा आर्ट मैं देख रही हूँ जिसमें एक मैसेज भी आ रहा है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में मुनक़दा ये नुमाइश न सिर्फ फन और तख्लीकी इजहार की मिसाल है, बल्कि ये काम की जगह पर हरासानी के खिलाफ शूर उजागर करने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ये नुमाइश न सिर्फ हुकूमत के इक़दाम को उजागर करती है, बल्कि इस बात का भी पैगाम देती है कि हमें वर्क प्लेस हरासानी के खिलाफ मिलकर काम करना होगा, ताकि दफातर में काम करने वाले हर फर्द को महफूज माहौल मुयसर आ सके। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने लाहौर रेलवे स्टेशन के दौरे के मौके पर लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रावल एक्सप्रेस के नए रिफर्बिश्ड ट्रैक का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली तमाम ट्रेनों के सारे रैक्स को रिफर्बिश कर दिया गया है। वज़ीर रेलवे ने कहा कि दीगर रेलगाड़ियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। FIA लाहौर जोन के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने कहा है कि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। मजीद तफसील बताएंगे नवीद हयात। लाहौर में FIA के दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी लाहौर जोन के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने कहा कि हर रोज 60 से 70 हज़ार मुसाफिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हैं, जिनसे मुकम्मल ताउन किया जाता है। उन्होंने कहा कि डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की शरह महज 0.6% है। जो बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, विजिट के लिए, बिजनेस के लिए, खुदारा क्या सराइयों पे आप यकीन ना कीजिए, कोई ऐसा नया बैरियर, कोई ऐसा नया चेक एंड बैलेंस नहीं क्रिएट किया गया जिसके तहत लोगों को कोई ऐसी अनड्यू हिंड्रेंस दी जाए। डायरेक्टर FIA अली ज़िया ने कहा कि वर्क वीजा फ्रॉड के केसों की तफ्तीश की जा रही है, जबकि इंसानी स्मगलिंग करने वाले बेबुनियाद इल्जामात से मुल्की इदारों पर दबाव डालने की कोशिशें करते हैं। ऐसे इनासर के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि लोग बेहतर से बेहतर यहाँ से लीगल जॉब लेके जाएं और वहाँ जाके जो है वो लीगल रेमिटेंस यहाँ भेजें। दुनिया हमसे कहती है कि आप लीगल एथिकल इमिग्रेशन को प्रमोट करें। डायरेक्टर FIA अली ज़िया ने कहा कि सब्ज पासपोर्ट का वकार बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। FIA बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की रहनुमाई करता रहेगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लकी वर्मत में पुलिस स्टेशन तिजोड़ी की मोबाइल वैन के करीब दहशतगर्दी के वाक़े में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले के फौरी बाद भारी नफरी मौके पर पहुंच गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए शहीद एहलकार के बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की।
انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور دشمن عناصر کے مکمل سدباب کے لیے پرعزم ہیں، دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموگ پڑنے کی توقع ہے۔ اگلے 2 روز کے دوران بالائی علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اسکردو -11، لیہ -9، گلگت -7، کلات -6، کوئٹہ، دیر، گوپس -4 اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی پی ایل کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ فاف ڈوپلیسی کے بعد معین علی نے بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پاکستان سپر لیگ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ معین علی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے نئے دور میں شامل ہونے پر بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ پی ایس ایل اپنے بہترین معیار اور ورلڈ کلاس ٹیلنٹ کی وجہ سے نمایاں مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھیلنا ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ یہاں اعلیٰ معیار کی کرکٹ اور شائقین کا غیر معمولی جوش و جذبہ قابل دید ہے۔ معین علی نے کہا کہ میں ایک نئے اور خاص تجربے کے لیے تیار ہوں۔ مکس مارشل آرٹس نیشنل چیمپئن شپ سیزن 4 کا میلہ 6 بیلٹس کے ساتھ ٹیم سندھ کے نام رہا۔ پاکستان مکس مارشل آرٹ فیڈریشن اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اشتراک سے ہونے والی 2 روزہ چیمپئن شپ میں 4000 فائٹرز نے حصہ لیا۔ فائنل راؤنڈ میں 7 فائٹرز نے 15 ویٹ کیٹیگریز میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ہر فاتح کھلاڑی کو 5-5 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ ٹاپ فائٹرز چین میں شیڈیول ایشین ایم ایم اے چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ مہمان خصوصی چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے ایم ایم اے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے 6 ماہ پر مشتمل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز کھیل کے اختتام پر کراچی بلیوز نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 285 رن سکور کر لیے۔ دفاعی چیمپئن سیالکوٹ ریجن نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اوپنر عبداللہ فضل نے 88 رنز کی اننگز کھیلی۔ انہوں نے 1 چھکا اور 10 چوکے لگائے۔ عثمان خان نے بھی نصف سینچری بنائی اور 80 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ ان کی اننگز میں 1 چھکا اور 10 چوکے شامل ہیں۔ سعد بیگ 39، شان مسعود 13، ہارون ارشد 15 اور کپتان سعود شکیل 0 پر پیویلین لوٹ گئے۔ رمیز عزیز 22 رنز بنا سکے۔ سیالکوٹ کی جانب سے حسن علی اور محمد حسنین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد علی اور اسامہ میر کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم پہنچے اور قائد اعظم ٹرافی کا فائنل میچ دیکھا۔ محسن نقوی سیالکوٹ اور کراچی بلیوز کے کھلاڑیوں سے ملے اور دونوں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید، ڈائریکٹر میڈیا عامر میر، ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ عبداللہ خرم نیازی بھی ہمراہ تھے۔ سعودی عرب میں ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار کارکردگی، کانسی کے 3 تمغے جیت لیے۔ اولمپئن صدف صدیقی نے ویمنز ماسٹرز کیٹیگری میں برانز میڈل اپنے نام کیا۔ پاکستان آرمی کے حوالدار مقبول احمد نے انفرادی ماسٹرز کیٹیگری جبکہ انعام اللہ نے سینئرز کیٹیگری میں میڈلز کانسی کے تمغے جیتے۔ چیمپئن شپ کے مینز ایونٹ میں 57 ممالک جبکہ خواتین مقابلوں میں 18 ممالک کے ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ ناظرین، یو اے ای بلز نے T10 لیگ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ابو ظبی میں کھیلے گئے فائنل میں یو اے ای بلز نے ایسپرن سٹالینز کو 80 رن سے ہرا دیا۔ یو اے ای بلز نے مقررہ 10 اوورز میں 1 وکٹ پر 150 رن سکور کیے۔ ٹم ڈیوڈ نے 30 گیندوں پر 98 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 12 چھکے اور 3 چوکے شامل تھے۔ جواب میں ایسپرن سٹالینز کی ٹیم 4 وکٹوں پر 70 رنز ہی بنا سکی۔ ٹم ڈیوڈ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।